Respected father, teachers, and all my dear friends, wish you a very sweet good morning. Now prayer. Get ready for the prayer. Join your hand and close your eyes. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there is no true faith in you. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where death is sparing life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, in dying that we are born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care, and all that makes the world so fair. Help us to do the things we should, to be to others kind and good, in all we do and in all we say. Help us to grow more loving every day. Every morning brings new thought, new words, new strength, and all possibilities. So for that, I would like to invite Nida ma'am for today's thought of the day. Good morning, everyone. The thought of the day is words are like keys. If you choose them right, they can open any heart and shut any mouth. I am repeating, words are like keys. If you choose them right, they can open any heart and shut any mouth. Thank you. Let's know about the worlds around us. For that, I would like to invite Jyoti for news. Today's news headline. South Africa receives first batch of COVID vaccine dose from India. Latest news highlights 8,635 fresh coronavirus cases in India. Lowest one-day rise in 8 months. Violent clashes as India farmer storms Delhi trade fort. India versus England first test series. India likely
morning. Good morning, all in one. Respected fathers, dear principal ma'am, teachers, and all dear students. So today I am here to say something, to share something. It is not a story, okay, or it is not a story related to imagination, okay. It is a real story, and through this you will learn something, okay. आजकल बहाने बहाने बहुत लोग बनाते हैं, और ये बहाने ऐसी चीज है जो आपको आगे जाने से रोकती है, आपकी सक्सेस के आगे वो बड़ा पत्थर बन जाती है, ठीक है ना। सो बहाने को हमें तोड़ना है, बहाने को हमें जीतना है। तो ये स्टोरी है हंगेरियन, ओके, जिसका नाम है कैरली, ओके। जो ये कैरली था वो हंगेरियन में रहता था और वो बेस्ट शूटर था, ओके। उसके पास ऐसी एबिलिटी थी, यानी उसका जो शूटिंग निशाना था वो कभी चुकता नहीं था, वो बहुत ही बेस्ट था उसमें, ठीक है। उसने वहाँ की सारी चैंपियनशिप जीत ली थी, नेशनल चैंपियनशिप उसने जीत ली थी, और उसका जो टारगेट था वो ओलंपिक पे था, यानी 1940 में जो ओलंपिक होने वाली है वो उसका टारगेट था, और किसी भी कुछ भी करके उसे वो गोल्ड मेडल यानी ओलंपिक में जीतना है, विन होना है, ठीक है ना। सो उसने डिसाइड किया और वो पूरी लगातार उसके लिए ट्राई करता रहता है, यानी पूरा ट्रेन करता है अपने आप को, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है अपने आप को। लेकिन क्या होता है, वो आर्मी में भी था, ओके, ही वाज एक्चुअली सर्विस एज ए आर्मी मैन, हंगेरियन आर्मी मैन, ओके। सो एक दिन क्या होता है कि जब उनकी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी, कैंप था आर्मी ट्रेनिंग का, तब उसके हाथ में जो उसका हाथ जो स्ट्रॉन्ग था, जिस हाथ से वो शूट करता था वही हाथ, ठीक है, बॉम्ब से फट जाता है, यानी वो अपना हाथ लाइफ टाइम के लिए खो देता है, वो पूरा टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, उसका जो टारगेट है वो छूट गया है। तो वो जो ओलंपिक्स में उसे गोल्ड मेडल जीतना है वो कैसे जीतेगा, उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो फिर वो पूरे दिन कहीं कोने में जाके रोता ही रहे, कहीं चूक जाए, या फिर अपने आप को खड़ा करके वो टारगेट पूरा करे फिर से। लेकिन उसने क्या किया, एक दिन 1 महीना तक उसने इलाज करवाया, यानी हॉस्पिटल में वो 1 महीना तक रहा, और फिर अपने आप को 1 साल के लिए ट्रेन किया। उसके पास क्या था, अब वो जो हाथ स्ट्रॉन्ग था वो तो है नहीं, ठीक है, लेकिन उसने कहाँ फोकस किया, जो उसके पास है, यानी लेफ्ट हैंड। सो उसने उस पर फोकस किया और 1 साल तक पूरी लगन से पूरी तैयारी की और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, और वो हाथ जिससे वो ठीक से लिख भी नहीं सकता था उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, और शूट डेली ट्रेनिंग अपने आप को करता ही रहा, और उसने अपना फोकस 1940 पे डाला। और फिर से वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, और जब चैंपियनशिप चल रही थी नेशनल, और 1 साल के बाद जो वो जब वापस आता है तब सब लोग यानी बेस्ट शूटर थे ना, वो सब लाइन में खड़े थे और उसे देख के बोलने लगे, क्या बात है, इसे बोलते हैं जज्बा। ये देखो, ये बंदा हमें मोटिवेट करने के लिए आया है, हमें हमारा जो हौसला है वो बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन आपसे कम्पीट करने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। देखो, पब्लिक ने बहुत जोर से आवाज़ दी, क्योंकि उसका हैंड नहीं था, जो हैंड बहुत ही कमज़ोर था, उससे अपने स्ट्रॉन्ग बना के वो कम्पीट में खड़ा है सबके साथ। तो वहाँ पर सबने अपना बेस्ट हैंड से शूट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जो यानी उसके पास एक ही हैंड था, उसने भी शूट किया, और यहाँ पर कैरलिन जीत जाता है, और उसका ये गोल नहीं था, उसे ओलंपिक जीतना था। तो उसने आगे बढ़ता ही रहा और आगे बढ़ता ही रहा, और 1940s में जो ओलंपिक होने वाली थी वो वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो जाती है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, और उसने फिर से अपने आप को समझाया, और उसने 1944 में जो ओलंपिक होने वाली है उस पर फोकस लगाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी ओलंपिक वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो जाती है, और अब उसके पास एक ही रास्ता था, और उसकी जो एज है वो भी बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। तो उसकी यानी एज के आधार पर उसकी जो कमजोर यानी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी कम होती जा रही थी, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस था, ठीक है ना, लोग सोच रहे हैं कि इसके लिए मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नाम का
वर्ल्ड उसकी लाइफ की डिक्शनरी में नहीं है कैरोलिन की, ठीक है ना। तो वो फिर से 1952 में जो ओलंपिक होने वाली है उसके लिए रेडी होता है, और तब उसकी एज 38 की हो गई है, और उसके जो कंपटीटर थे वो सब यंग हैं, फिर भी वो हार नहीं मानता, और क्या होता है, वही जीतता है जिसके पास न जो स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था, ठीक है ना, वीक हैंड था, फिर भी वो जीतता है। यानी माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, यही मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बहाने मत बनाओ, ठीक है ना। अगर कैरोलिन ने बहाने बनाए होते तो शायद आज वो वर्ल्ड का बेस्ट शूटर नहीं बन पाता, और उसने 2 गोल्ड मेडल जीते। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir, for this speech. Now it is time to play. I would like to invite Mukesh for leaders. India is my country, all Indians are my brother and sister. I love my country and proud of its heritage. I shall always try to wear trophy. I shall respect my parents, teachers, and all my elders. Continue everyone with courtesy. I pay my devotion to my country and its people. My happiness lies in the well-being and prosperity. Jai Hind. Now national song. Stand it is. Attention. Start. सुजलां सुफलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फूलकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। Now magical lines. I am the best. God is with me. Today is my day. I can do it. I am winner. I am very happy. I am very strong. I love and respect everyone. I love my school and nation.